السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ الفصل الثالث ہے الایمان بما وصف به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، اس پر ایمان لانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اس سے قبل ہم الحمدللہ ایک بات سیکھ چکے ہیں، اور وہ کیا کہ ہر اس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مبارک ذات کے متعلق بتا دیا۔ اس پر ہم نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو آیات ہیں وہ الحمدللہ پڑھی، اور اس کا کچھ مفہوم اپنی کم علمی اور جو کم مائگی بس اس کی روشنی میں سیکھنا چاہا۔ ویسے تو آپ خود مطالعہ کریں اور دیگر کتب کی طرف ان سے رہنمائی لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ علم ملے گا۔ فاقد الشیء لا یعطی، جو بندہ خود بیچارہ ناکارہ ہے اس کے پاس آپ کو کیا ملے گا۔ خیر، آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کے متعلق جو تعارف بیان کیا ہے، اس کی جو صفات بیان کی ہیں، اس کے متعلق چند احادیث ہیں۔ قال المؤلف رحمہ اللہ، امام فرماتے ہیں ثم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تفسر القرآن، یہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن میں جو مجمل لفظ ہے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ وَتُبَيِّنُهُ، اور یہ قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور یہ قرآن پاک پر دلالت کرتی ہے، مراد قرآن کی جو مراد ہے وہ بتاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی الگ سے مراد بتاتی ہے، بلکہ قرآن پاک کے الفاظ کی، آیات کی جو مراد ہے وہ سمجھاتی ہے۔ بس اوقات ہم کلام کرتے ہیں لیکن ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سمجھ نہیں پاتا، تو پھر کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ اس کی بات کا مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے۔ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، اور اس کی تعبیر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں مستقل جو احکام ہے، خبریں بیان کی ہے گئی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ قرآن پاک جو ہے، حدیث مبارکہ جو ہے، یہ خوبصورت تعبیر ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی پھر حدیث مبارکہ کو قبول کرنے کا حکم بھی دیا ہے، قبول کیا بھی ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی حجیت حدیث، کہ حدیث حجت ہے کہ نہیں۔ بعض ایسے بیچارے گئے گزرے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، تو اس پر مستقل کتب اہل علم نے لکھی ہیں۔ موجودہ دور میں جو نہایت آسان فہم میں اردو زبان میں کتاب اگر اس موضوع پر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ ہمارے شیخ مفتی جماعت عبدالستار الحماد حفظ اللہ کی کتاب ہے حجیت حدیث، مکتبہ دارالسلام سے چھپی ہے، اور گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی، حجیت حدیث۔ اب تو اس کا عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، غالباً کویت یا قطر سے چھپا بھی ہے۔ اس سے پہلے حجیت حدیث کے نام سے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اور اوپر تک تو بڑی کتابیں ہیں اس پر۔ خیر، ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ابھی موضوع کیا ہے کہ حدیث مبارکہ بھی ایک دین کا مرجع ہے، اور عقیدہ سمجھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف میں یہ بھی ایک مصدر ہے، اور اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے، اور ان باتوں پر ایمان بھی ہمارا ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ وما وصف الرسول به ربہ، اور جو وصف بیان کیا ہے، صفت بیان کی ہے، وصف بیان کیا ہے، تعارف بیان کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا، من الاحادیث الصحہ، صحیح احادیث سے، التی تلقاها، وہ صحیح احادیث
तलक्काहा जिनको कबूल किया है, अहलुल मारिफती अहले इल्म ने, बिल कबूल कबूलियत के साथ। अहादीस कौन सी? वो सही अहादीस जिन्हें उलमाए किराम ने कबूल किया है, क्योंकि कुछ ऐसी रिवायात भी हैं जो ज़ईफ हैं, मौजू मनगढ़ंत रिवायात हैं, अहले इल्म ने उनको कबूल नहीं किया है। तो आम अल्फाज में समझें, जिस तरह आप कोई अपनी तरफ से इबारत बनाकर पढ़ें और हाफिज कुरान को कहें कि ये कुरान है, मानेगा वो? नहीं मानेगा। इसी तरह अहादीस के भी मौजूदा दौर में भी बहुत बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जो अहादीस के इल्म पर गहरी नजर रखते हैं, और आप कोई भी इबारत पढ़ें या कोई झूठी मूठी रिवायत पढ़ें तो फौरन वो चौंक जाते हैं और आपको बताते हैं कि हदीस नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं, और किसी ने अपनी बात कह के उनके खाते डाल दी। तो ऐसी सही अहादीस से जिनको अहले इल्म ने कबूल किया हो, वजब अल ईमान बिहा कदालिक, तो ईमान लाना वाजिब है उन पर, कदालिक इसी तरह। जिस तरह आयात पर ईमान जरूरी है, इस तरह अहादीस पर भी ईमान जरूरी है, क्योंकि अहादीस भी मिन जानिब बिल्लाह हैं, लेकिन अल्फाज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो मालूम हुआ इस पैरे से कि हमने उन बातों पर भी ईमान रखना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब तबारक व तआला के मुतालिक बयान फरमाई हैं। जी, अब है अहादीस उस सिफात। सबसे पहली हदीस मुबारक है अल्लाह तबारक व तआला के आसमान दुनिया पे नुज़ूल के बारे में, कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता है। मिस्ल कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यंजिलु रब्बुना, हमारा रब उतरता है, इला समाइ दुनिया, आसमान दुनिया की तरफ, कुल्ला लैलतिन, हर रात, हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी सुलुस बाकी रह जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फयकूलु मन यदऊनी, तो वो कहता है कौन है जो मुझसे मांगे, फअस्तजीब लहू, तो मैं उसको जवाब दूं, उसकी दुआ कबूल करूं, उसको अता करूं। अल्लाहु अकबर। मैं यसलुनी फउतिया, कौन है जो मुझसे सवाल करे, मांगे, फउतिया हूँ, तो मैं उसको अता करूं। मैं यस्तगफिरुनी, कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे, फागफिर लहू, तो मैं उसको बख्श दूं। ये हदीस मुत्तफकुन अलैह, इस हदीस का पर इत्तेफाक किया गया है। ये एक इस्तिलाह है अहले मुस्तला के यहाँ, इल्मुल मुस्तला से ताल्लुक रखने वाले जो उलमा उसूलियीन हैं, उनके यहाँ ये एक इस्तिलाह है, जिससे मुराद क्या होता है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये हदीस मुबारक अपनी कुतुब में दर्ज की है। और ये जो हदीस सही होने के 7 मरातब है ना, उनमें सबसे पहला रुतबा है ये, गोया नंबर 1 की ये हदीस होती है। तो अब इस हदीस में क्या है, यंजिल रब्बुना इला समाई दुनिया, हमारा रब तबारक व तआला आसमान दुनिया पर उतरता है हर रात। तो हमारा अहलुस सुन्नह वल जमा का इस पर ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला उतरता है, आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता है। कैसे लाता है, इस पर पहले भी हम कई बार बात कर चुके कि ये कैफियत मजहूल है, और इस तरह के फजूल सवाल करना जाहिर है बिदत है। जी, अल्लाह ताला जब आसमान दुनिया पर आता है तो क्या आसमान उस वक़्त अर्श जो है वो खाली होता है, कुर्सी जो है वो खाली होती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करना ही गलत है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह फी इस्बात फरह लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए सिफत फरह का बयान। फरह का मतलब होता है खुश होना। फरहत जो है आप जानते हैं चेहरे के सुरूर और दिल की लज्जत पर बोला जाता है। तो सिफत फरह अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित है, कैसे, कमा यलीकु भी शान ही, जिस तरह अल्लाह ताला के लायक। तो वक़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान, लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दी, अलबत्ता अल्लाह ताला अशद्दु फरहा, बहुत ज्यादा खुश होता है, बितौबति अब्दी, अपने बंदे की तौबा के साथ, मिन अहदिकुम, तुम में से किसी एक, बिराहिलती ही, उसकी सवारी से भी, अल हदीसा, ये अल हदीसा इसलिए है कि इसके शुरू में इकरा महजूफ है, यानी इकरा इल हदीसा। तो मौलवी रहमतुल्लाह ने थोड़ी सी हदीस बयान की, हदीस का एक टुकड़ा बयान किया और कहा है इकरा इल हदीसा, मुकम्मल हदीस जो है ना वो पढ़ लो, इकरा इल हदीस अभी तमामी, मुकम्मल हदीस मुबारक कुतबे हदीस से पढ़ लो। तो ये हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो यहाँ है अशद्दु फरहा, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है
جب اس کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا وہ صحیح بخاری مسلم میں آپ جانتے ہیں وہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ صحرا میں جائے اور وہاں اس کی سواری بھی ہو، سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا بھی ہو. جی. تو اتنے میں کیا ہو، وہ آرام کرے اور اس کی سواری گم ہو جائے. اب وہ بالکل پریشان ہو، کیا کروں کہاں جاؤں، بھوک کے ساتھ نہ ڈال، سواری نہیں، سامان نہیں، کوئی آس پاس بندہ نہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ زندگی سے مایوس ہو جائے گا. تو مایوس ہو کر اپنی جگہ پر آ کر وہ لیٹ جائے اور کہے کہ چلے یہاں پھر میں مر جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ جو سواری ہے، تو وہ دیکھے فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اچانک کیا دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سر کے پاس ہو. تو وہ کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک. تو فرتے جذبات میں آ کر وہ کیا کہتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اخطا من شدت الفرح، بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے وہ کیا کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا. کہنا کیا چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن کہا کیا کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. مراد کہ اس کو خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی سواری اس کو مل گئی. زندگی سے مایوس ہوا بیٹھا تھا، اچانک سامنے اس کی زندگی اس کو نظر آ جائے، وہ سواری جس پر وہ سوار ہو سکتا ہے، وہ کھانا جو وہ کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، تو زندگی نظر آ گئی نا، زندگی کی بہار نظر آ گئی، کتنی خوشی ہوتی. اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی کب ہوتی ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر کر کے اللہ کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو اللہ اکبر. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت فرا جو ہے اس کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اب کیسے خوش ہوتا ہے، بندوں کی طرح نہیں. تو بندوں میں بھی آپ دیکھیں ہر ایک کی خوشی، بلکہ انسانوں میں سے دیکھ لیں اور سگے بھائیوں کو بٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک کی خوشی کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ خوشی والی بات پہ بقیہ تو سارے ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہنس رہے ہوتے. اور کتنے بچے ایسے ہیں، آپ ماشاءاللہ کئی آپ میں سے ٹیچرز بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، بس اوقات مارنا بھی پڑتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ایک بچے کو مار رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں، لیکن وہ آگے سے ہنس رہا ہوتا ہے. یعنی ہنسنے کا ہمارے ہاں عمومی یہ انداز نہیں ہے کہ مار پڑنے پر ہنسا جائے، لیکن کئی ہنس رہے ہوتے ہیں، انداز ہی یہ ہے ان کا. تو یہ مخلوق آپس میں متفق نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا جائے؟ گویا یہ جو مشابہت والا بت ہے، یہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف محاذ ہے جس کو کھڑا کر لیا گیا. تو ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، ہاں ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے صفت ضحک. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے دو بندوں سے. یقتل احدہم الاخر، ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے. کلاہما يدخل الجنہ، پھر وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک کافر جو ہے اس نے میدان جنگ میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تو کافر کیا ٹھہرا؟ قاتل. مقتول کیا تھا؟ مسلمان. مقتول نے تو جنت میں جانا تھا، وہ مسلمان تھا، وہ تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا. پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاتل تھا، کافر تھا، اس کو بھی ہدایت دے دی، مسلمان ہو گیا، وہ بھی جہاد پہ گیا اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا. اب دونوں قیامت والے دن آتے ہیں. وہ جو مقتول مسلمان تھا وہ کیا کہے گا، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا. اب قاتل کو تو جہنم میں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس پر احسان کیا، انعام کیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، وہ بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا. اب دونوں اکٹھے جنت میں جا رہے ہیں، اور بعض روایتوں کے الفاظ کے ہاتھ پکڑ کے دونوں جا رہے ہیں، قاتل مقتول دونوں جا رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ ہنسے گا. اللہ اکبر. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اس کا اس بات ہے. اب کیا جیسے ہم ہنستے ہیں؟ نہیں بھائی، خالق مخلوق میں فرق ہے. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. لیسا کمثلی شیء، اللہ جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح چوتھی صفت کیا ہے، فی اثبات العجب، صفت عجب، تعجب کا بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتا ہے، اور دیگر صفات کا بھی یہاں سے بیان ہوتا ہے. تو صفت تعجب جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عجیب ربنا، ہمارے رب
نے ताज्जुब किया मिन कुनूत इबादी। कुनूत कहते हैं मायूसी को, जिस तरह आयत आप पढ़ते हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। तो अपने बंदों की मायूसी से अल्लाह ताला ताज्जुब, हमारा रब ताज्जुब करता है। वकुर्बी गियरी, और अहवाल की तब्दीली के करीब होने से अल्लाह ताला क्या करता है, ताज्जुब करता है। यंजुर इलैकुम, वो देखता है तुम्हारी तरफ, अजिलीना, इस हाल में कि तुम, अजिलीन का मतलब होता है इंतहाई तंगी में मुब्तला होना। अजला यजिलु, इंतहाई तंगी में मुब्तला होना, तो तुम इंतहाई तंगी में होते हो। कानितीन, इस हाल में कि तुम बहुत मायूस हुए होते हो। जी। फयज़ल्लु यज़हक, तो अल्लाह ताला हंसता है फिर, तो वो शुरू होता है, हंसता है फिर अल्लाह ताला। ये आलम, वो जानता है कि अन्नक फरजकुम करीब, तुम्हारी जो इस मुश्किल से निकलने की उम्मीद है वो बहुत करीब आ चुकी है। मतलब तुम परेशान हो रहे हो कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, सारे परेशान हैं, बहुत ज्यादा इंतहा दर्जे की तंगी के अंदर मुब्तला हैं, बहुत मायूस हुए होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हंसता है, कहता है कि अभी कल ही तो बारिश होने वाली है, आज ही तो बारिश होने वाली है जी, अभी बारिश का वक्त करीब हुआ चाहता है। तो इस बात से अल्लाह तबारक व तआला हंसता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब लोग मायूस हो जाते हैं तो ताज्जुब करता है कि इनके अहवाल की जो तब्दीली है वो करीब आ चुकी है, इससे अल्लाह ताला को ताज्जुब होता है। अब सिफ्ते ताज्जुब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के अंदर मौजूद है, लेकिन क्या वैसे मौजूद है जैसे बंदों के यहाँ होता है? नहीं। ताज्जुब जो है ना, ताज्जुब की दो अकसाम पाई जाती हैं। एक होता है ताज्जुब जो महमूद होता है, और एक ताज्जुब होता है मजमूम। ताज्जुब जिस पर मदह की जाती है वो ताज्जुब कौन सा होता है? आप देखते हैं एक बच्चे को कि वो अपने बाप का, माँ का बड़ा फर्मा बरदार है, हद दर्जा फर्मा बरदार है, आप ताज्जुब का इजहार करते हैं, यार माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बच्चा है ये तो, माँ बाप का बड़ा इंतहा दर्जे का ये फर्मा बरदार है, ताज्जुब होता है आपको ना, एक गैर मुतवक्के चीज देखकर। एक मजमूम है, इसी से ही आप मिसाल ले लें कि एक बच्चा इंतहाई दर्जे का नाफरमान है, हत्ता कि उसने माँ बाप में से किसी एक को कत्ल तक कर डाला है, तो आप कहते हैं यार ताज्जुब है इस आदमी पर। यानी ये चीज गैर मुतवक्के है, आप सोच नहीं सकते कि कोई आदमी अपने बाप को ही कत्ल कर दे, लेकिन देखा, मालूम हुआ कि वहां ऐसा हुआ, आपको ताज्जुब होता है। तो ताज्जुब एक महमूद भी होता है, एक मजमूम भी होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला में मजमूम नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के अंदर महमूद है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो सिफात कमाल हैं। इसलिए अल्लाह ताला का जो ताज्जुब करना है बंदों के एतबार से वो काबिले तारीफ कामों पे है। इसी तरह ताज्जुब जो है, जिस तरह हमने इसकी अकसाम पढ़ी, इसी तरह ताज्जुब की कुछ इसके असबाब भी होते हैं। एक सबब होता है किसी चीज का गैर मुतवक्के, गैर मालूम होना, ये एक सबब होता है आपके ताज्जुब करने का। जिस तरह अभी हमने मिसालें दो ली, उससे यही दोनों बातें हैं ना, कि आदमी की को तवक्को नहीं होती कि ऐसा होगा, आदमी को मालूम नहीं होता कि ऐसा होगा। इसी तरह एक दूसरा सबब भी होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, ताज्जुब की जाने वाली चीज के सबब का मालूम ना होना। अब ये दो असबाब हैं किसके, ताज्जुब के। ये दो असबाब बंदों में पाए जाते हैं, अल्लाह ताला में नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो आलिमुल गैब है, आपको मालूम नहीं था कि ऐसा काम हो जाएगा तो आप ताज्जुब कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है, वो तो आलिमुल गैब है, उसको तो पता है पहले भी क्या होना है, बाद में भी क्या होना है, अब क्या हो रहा है, वो तो एक एक चीज की जो है वो। लिहाजा जो बंदों का ताज्जुब है, इसको अल्लाह तबारक व तआला के ताज्जुब के साथ समझा नहीं जाएगा। अल्लाह का ताज्जुब और है, बंदे का ताज्जुब और है। ताज्जुब करना अल्लाह ताला की सिफत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। हम्म। इस तरह इसकी कुरान पाक में भी कई इसके जो है वो दलाइल मौजूद हैं। बल आजिबता व यस्खरून की एक किरात जो है तफसीर तबरी में लिखा है, बल आजिबतु भी है, बल आजिबतु व यस्खरून, बल्कि मैं तो ताज्जुब करता हूँ और ये तमस्खर उड़ा रहे हैं।
تو اللہ तबारक व तआला की सिफत अजब है, ताज्जुब। इसको अजब ही पढ़ना है, उज्ब नहीं पढ़ना। उज्ब और चीज होती है, वो अलग चीज है, वो खुद पसंदी के माना में होता है। और अजब और चीज है जिसको ताज्जुब कहते हैं। अब ये जो आपने तफसील पढ़ी इसबाब की, अकसाम की, तो अल्लाह तबारक व तआला का ताज्जुब और है, बंदों का ताज्जुब और है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हम आगे चलते हैं। बाबुन फी इस्बात रिजली अविल कदमी। अल्लाह तबारक व तआला की रिजल है, अल्लाह ताला का कदम है। रिजल टांग को कहते हैं, कदम कदम को कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की टांग अल्लाह ताला का कदम है। वक़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ालु जहन्नम, हमेशा रहेगी जहन्नम, युल्का फीहा, कि उसमें लोगों को डाला जाएगा। वतक़ूल, और वो कहती रहेगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हत्ता यज़अ रब्बुल इज़्ज़ति फीहा, यहाँ तक के रब्बुल इज़्ज़त उसमें अपना रखेंगे। एक रिवायत में अल्फाज के हैं, कदम के, अपना कदम रखेगा। और कुछ रिवायतों में रिजल का अल्फाज भी है, रिजलहू। फयनज़वी बादुहा इला बाद, उसका एक हिस्सा दूसरे के साथ सुकड़ जाएगा, उसका बाद हिस्सा बाज के साथ क्या होगा, मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। व तक़ूलु, और वो कहेगी, कत कत, काफी है, काफी है। अल्लाह अकबर। जहन्नम जो है ना, जहन्नम, इसके दो मानी हैं। एक जहन्नम का मतलब होता है तारीकी, और दूसरा माना होता है गहराई। ये दोनों मानी पाए जाते हैं जहन्नम में। तो जहन्नम निहायत तारीक भी है, और जहन्नम निहायत गहरी भी है। वो रिवायत आप जानते हैं ना, आवाज आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कौन सी आवाज है? 70 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में वो एक फेंका था पत्थर। 70 साल गुजरने के बाद अब वो जहन्नम के पैंदे में जाकर गिरा है। इतनी गहराई है जहन्नम की। तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अजाब से हर तरह से हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जहन्नम के अंदर लोग डाले जाएंगे, डाले जाएंगे। असल में अल्लाह ताला ने जहन्नम के साथ वादा कर रखा है, लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमईन, कि मैं जन्नत को जरूर भर दूंगा इंसानों और जिन्नों के साथ। इस वादे को अल्लाह तबारक व तआला जाहिर है कि निभाएंगे। इसी वजह से वो क्या कह रही होगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो जुल्म को हराम करार दे दिया है। हदीस कुदसी भी है, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, मैंने जुल्म को अपने आप पर भी हराम कर दिया और आप पर भी हराम कर दिया। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि जहन्नम जब भरेगी नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लोगों में से कुछ लोगों को उसमें डाल देगा, क्योंकि उस जहन्नम से वादा किया था कि तुझे जरूर भरूंगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करे, बल्कि अपना कदम अल्लाह ताला उसमें रखेंगे, जिसके साथ उसका हिस्सा जो है वो आपस में मिल जाएगा और वो सुकड़ जाएगी। तो फिर वो कहेगी, कत कत, बस बस, काफी है अब। जन्नत का मामला और है। जन्नत की वसअत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वसअत है। इसकी वसअत का अंदाजा आपने करना हो तो नहीं कर सकते। बस हल्की सी बात आप जानना चाहें तो वो आखिरी जन्नती वाली जो हदीस है वही पढ़ लें, उसको कितनी जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जन्नत जो है वो भी नहीं भरेगी, जन्नत भी नहीं भरेगी। तो जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला यूं जिस तरह जहन्नम को अल्लाह ताला कदम रखकर उसको एक का हिस्सा दूसरे के साथ मिला देगा, जन्नत को ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जन्नत अल्लाह ताला की रहमत है, और रहमत अल्लाह की वसी ही वसी है। जन्नत के लिए फिर अलग से अल्लाह तबारक व तआला एक मखलूक और पैदा करेगा, जिसको जन्नत के अंदर आबाद करेगा। अल्लाह अकबर कबीर। यहाँ फिर फिqही मसाइल आगे कुछ और भी हैं कि क्या जन्नत में औलाद होगी कि नहीं होगी। ये भी उलमा में ना एक इख्तिलाफ है आइमा में। कुछ कहते हैं औलाद नहीं होगी वहां। क्यों? अगर औलाद होनी होती तो अल्लाह ताला जन्नत को भरने के लिए अलग से मखलूक पैदा क्यों करता। कुछ कहते हैं नहीं होगी जी, वालकुम फीहा मा तशाउन, जन्नत में आप जो चाहेंगे वो सब कुछ होगा जी। तो अगर आदमी चाहेगा कि औलाद हो तो औलाद भी होगी। तीसरा कौल है कि ये भी मैंने पढ़ा था कि हाँ,
आदमी चाहेगा नहीं कि मेरी औलाद हो, लेकिन अगर वो चाहे, बाकी उसको यानी उसको है कि मेरा औलाद हो, तो वो बड़ी जल्दी ही अचानक वो सारा हमल के मामलात और बड़ी जल्दी वो सारा बच्चा पैदा भी हो जाएगा। खैर, इसकी तफसील आपने जाननी हो तो ये जो जामे तिरमिजी है ना, उसमें जो अबवाबुल जन्ना है गालबन, उसमें इस तरह के अबवाब आप पढ़ सकते हैं। इब्नुल क़य्यिम और कई अहले इल्म के इस पर बहुत ज्यादा कलाम भी है। खैर, ये बात एक और थी। तो यहाँ जो जहन्नम वाली हमने रिवायत पढ़ी, यहाँ असल में अल्लाह तबारक व तआला की किस सिफ्त का इजहार हो रहा है? सिफ्ते कदम का। अल्लाह तबारक व तआला का कदम है। यहाँ एक और बात समझें। हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये हमने पढ़ा, कदम पढ़ा, अल्लाह ताला की रिजल पढ़ी, इसमें भी खैर उलमा के इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा तो कहते हैं ये दोनों मुतरादिफ है, दोनों का माना एक ही है। खैर, इसके साथ वजह ना पढ़ चुके, अल्लाह ताला का चेहरा है, इसी तरह अल्लाह ताला की आइन है, आंखें हैं। जी, कुरान में है अल्लाह ताला की साख, पिंडली है, कदा व कदा है, जितनी सिफात हैं, इन सब के बारे दो नजरियात हैं। एक नजरिया कि ये सिफात हैं, और दूसरा नजरिया क्या, ये आज़ा हैं। सिफात वाला नजरिया दुरुस्त है, आज़ा वाला गलत है। जिस तरह हमारे यहाँ आंख हमारे जिस्म का हिस्सा है, उज्व है, ये आंख हमारा उज्व है, वगैरह वगैरह। अल्लाह तबारक व तआला का ऐसे नहीं है। वगरना तो अल्लाह ताला का जिस्म मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला का जिस्म है। ये हम तो नहीं कहते, ये तो मुजस्सिमा का अकीदा है। इसलिए हमारा अहलुस सुन्ना वल जमात का नजरिया क्या है कि ये सारी अल्लाह ताला की सिफात हैं। आज़ा वाला नजरिया रखना ये बातिल नजरिया है, क्योंकि इसकी दलील नहीं है। इसी तरह सिफ्ते कलाम और सिफ्ते सौत, ये सारी सिफात हम पीछे पढ़ चुके हैं आयात की रोशनी में। अब अहादीस की रोशनी में पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला फरमाता है, या इब्न आदम। अब यक़ूलुल्लाहु ताला ये अल्लाह ताला की सिफ्ते कलाम पे दलालत करता है। आदम, तो वो कहेगा, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, लब्बैका व सअदैक, लब्बैका, मैं बार बार हाजिर हूँ, व सअदैक, और बार बार इस हाजिरी को सादत समझता हूँ अपने लिए। लब्बैक व सअदैक, सुभान अल्लाह, कितनी चाशनी है इस लफ्ज के अंदर। तो लब्बैक, बार बार, ये के बाद दीगरे, आपकी बात पे मैं कायम हूँ, आपके लिए हाजिर हूँ, वसादिक, और बार बार इस हाजिरी को अपने लिए सादत समझता हूँ। फयुनादी भी सऊत, तो अल्लाह ताला आवाज के साथ पुकारेंगे। हाँ, इन अल्लाह यअमुरुका अन तुखरिजा, अल्लाह ताला तुझे हुक्म देता है कि तू निकाल ले, मिन दुर्रियतिका, अपनी औलाद से, बासन, एक ग्रोह, इलन्नार, जहन्नम से, जहन्नम से एक ग्रोह निकाल ले। तो ये सिफारिश वाली लंबी रिवायत है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की सिफ्ते कलाम है, और फिर उस कलाम का आवाज वाला होना, उसका यहाँ से इस बात हो रहा है। इस पर हम पहले हम बात कर चुके। इसी तरह ये भी हमने पढ़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहद, तुम में से कोई एक नहीं है, इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुह, मगर उसके साथ उसका रब कलाम करेगा। लैसा बैनहु व बैनहु हाजिबुन, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई रुकावट नहीं होगी। वला तर्जुमान, तर्जुमान तुर्जुमान सारे पढ़ लेते हैं, सारे राब ठीक हैं। और ना कोई तर्जुमान होगा, को तर्जुमानी करने वाला भी नहीं, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ हर एक ने बात करनी ही करनी। भाई देखें, जो काफिर लोग हैं, बात उनसे भी अल्लाह तबारक व ताला करेगा, जो जन्नती हैं उनके साथ भी, लेकिन जो दीदार है, ये सिर्फ अहले जन्नत को अल्लाह ताला नसीब फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। जी, अल्लाह तबारक व ताला की सिफत उलू, कि अल्लाह ताला ऊपर है। तो आपका फरमान मरीज को रुकिया करते हुए, दम करते हुए, रब्बुन अल्लाहु अल्लज़ी फिस समा, यहाँ वैसे रब्बना होना चाहिए, रब्बन अल्लाह, ए हमारे रब, अल्लज़ी फिस समा, जो आसमान में है। चले, रब्बुन अल्लाह भी ठीक है। अब यहाँ हमारा रब वो जो आसमान में है, फिस समा, आसमान में है। यहाँ एक एतराज है। बाज लोग क्या कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पर मुस्तवी होना नहीं मानते, वो कहते हैं अल्लाह ताला आसमान के अंदर है। क्या मतलब? आसमान बड़ा है तो ही तो अल्लाह ताला को उसके उसने अपने अंदर समोया हुआ है। तो गोया आसमान बड़ा है, अल्लाह उससे छोटा है, अलियादु बिल्लाह। फी का जो मतलब है, कहते हैं जी, फी का मतलब होता है, हकीकी तौर पे इसका तर्जमा होता है मैं। जी, बात मान ली हमने, आपने कि इसका तर्जमा में ही होता है। तो फिर जो है,
असमा का मतलब भी क्या होता है? बुलंदी होता है। असमा का मतलब हकीकी माना, अगर मीन का आपने मे वाला लेना है, तो असमा का भी हकीकी माना क्या है? बुलंदी। तो ठीक है बात कि अल्लाह तबारक व ताला बुलंदी में है, तर्जमा ठीक हो गया। और दूसरा तर्जमा भी ठीक है, कौन सा? कि फी बमाना क्या है? फी बमाना अला है। और ये नहव में बकायदा ये बात मौजूद है, आप में से अक्सर ने पढ़ी भी है कि ये जो हरूफ जारा होते हैं, इनमें तनाउब होता है। तनाउब क्या होता है कि ये एक दूसरे की नियाबत में आ जाते हैं। अला कभी फी के माना में, फी कभी अला के माना में आ जाता है, जिसकी बहुत वाज़ेह मिसाल कुरान पाक में है क्या? वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल। और जरूर भी जरूर मैं तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़ा दूंगा। अब यहाँ फी जुज़ूइन नख्ल है। अगर आप कहते हैं कि फी बमाना में ही करें, आप फी बमाना फी ही करें, अला न करें, तो इसका क्या मतलब है आयत का? कि तनों के अंदर घुसा कर, अंदर दाखिल करके मैं तुम्हें सूली दूंगा। ये तुम्हारा ही गलत हो जाएगा। इसलिए फी बमाना अला भी आ जाता है, जिस तरह अला बमाना फी भी आ जाता है, इनके अंदर तनाव होता है। इसके जो अल्लाह अकबर कबीरा। जी, तकद्दस अस्मुक, तेरा नाम जो है वो बड़ा पाकीज़ा है। अमरु का फिस्समा वल अर्द, तेरा हुक्म जो है वो जमीन आसमान में चलता है। कमा रहमतु का फिस्समा, जिस तरह तेरी रहमतें आसमान में हैं। तो अल्लाह ताला की 99 रहमतें हैं ना जो आसमान में हैं। एक रहमत अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारी है। इजाल रहमत का फिल अर्द, अपनी एक रहमत दुनिया में उतार। वो जो एक रहमत दुनिया में उतारी है उसमें से है कि जमीन वालों में उसमें से रहमत कीजिए। इगफिर लना हुबना व खतायाना, हमारे गुनाह हमारी खताएं सब मुआफ फरमा दे, बड़े छोटे। अंत रब्बुत तय्यबीन, तू रब्बुत तय्यबीन है, पाकीज़ा लोगों का रब है। अंजिल रहमतम मिन रहमतिका, अपनी रहमत में से रहमत नाजिल कर। और व शिफा मिन शिफाइक, अपनी शिफा में से शिफा नाजिल कर। अला हादल वजह, इस दर्द पर। रवाहु अबू दाऊद। इस रिवायत की सनद में कलाम है, लेकिन खैर तायद होती है इसकी बकिया रिवायात से। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर होने का और इसी तरह दीगर सिफात का भी यहाँ से बयान है। सिफत रहमत का और कई सिफात का यहाँ से बयान है। इसी तरह सिफात उलूव के बारे में एक और रिवायत है, आपने फरमाया ला तमनूनी, क्या तुम मुझे अमीन नहीं समझते? वो अना अमीन मन फिस समा, जबकि मैं उसका अमीन हूं जो आसमान में है। या हकीकी वाला माना अगर आप करना चाहते हैं तो बुलंदी में है। जी, वगैरह इसके अलावा और भी इस पर हैं। तो ये वो आप जानते हैं, अली रदी अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाकर भेजा था ना यमन। तो उन्होंने वहां से सोना भेजा था, और वो सोना भी बिल्कुल उसकी सफाई वगैरह नहीं हुई हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार लोगों के दरमियान वो तकसीम कर दिया। तो एक शख्स आया, जुल खुवैसरा नामी, तो क्या कहने लगा कि आपने ये तकसीम गलत की है, मुझे भी हिस्सा देना था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ये फरमाया था कि क्या तुम मुझे अमानतदार नहीं समझते? वो आना अमीन मन फिस समा, जबकि आसमान वाले का तो मैं अमानतदार हूँ। फिर आपने फरमाया था यातीनी खबर उस समा, आसमान की खबरें मेरे पास आती हैं, तो मुझे ज्यादा पता है मैंने किसको देना है किसको नहीं देना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वही है जिसकी औलाद से फिर खारजी पैदा हुए थे, और ये खुद भी खारजी था। सहाबा किराम में ऐसी बुरी सिफात वाले लोग नहीं पाए जाते थे, ये खारजी था। और खवारिज हम जानते हैं कि किस कदर दीन इस्लाम के सख्त दुश्मन होते हैं। इसी तरह आपका एक और फरमान, वल अर्श फौक ज़ालिक, अर्श इससे ऊपर है। वल्लाहु फौकल अर्श, और अल्लाह तबारक व तआला अर्श के भी ऊपर है। वह हुवा यअलमु मा अंतुम अलैहि। अब इस रिवायत में भी अल्लाह तबारक व तआला की जो बुलंदी है उसका इस बात है। इसी तरह आपका फरमान जारी है लौंडी के लिए। ये मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह अन्हु की लौंडी थी ना, और ये अजमिया थी। तो आपने क्या पूछा था, अइन अल्लाह, अल्लाह किधर है? उसने कहा फिस समा। कहा मन आना, मैं कौन हूँ? कहा अंत रसूलुल्लाह। आपने फरमाया आती कहा फइन्नहा मोमिना, इसको आजाद कर दो क्योंकि ये मोमिना है। यहाँ कई जो गुमराह फिरके हैं और गुमराह लोग हैं वो क्या बात करते हैं, ये जो आसमान पे होने वाला ये जो नजरिया है कि अल्लाह ताला आसमान, ये तो लौंडी का नजरिया था जो अजमी थी। इतने नकम्मे लोग हैं। चलो माना कि लौंडी का था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मोमिना की मोहर लगाई कि ना लगाई? आपने ऐसे मोहर लगा दी। जाहिर है आपने उसका अकीदा सुना,
آپ کے بقول مان لیا کہ وہ صرف اجمی خاتون جو تھی لونڈی اس کا عقیدہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو مانا کہ نہیں مانا؟ صرف یہ دو سوالات کے جواب پر اس کے ایمان کی گواہی آپ نے دی ہے کہ نہیں دی؟ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث مبارکہ بھی یہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علو جو ہے اس کا اس بات ہے، اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ جو ساتوں آسمان کا رب ہے، ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، ربنا ورب کل شیء، ہمارا اور ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فالق الحب والنوا، دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا، منزل التورات والانجیل والقرآن، تورات انجیل قرآن اتارنے والا، اعوذ بک من شر کل دابت، ہر چوپائے، ہر جاندار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، انت آخذ بناصیتها، تو اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے، اللہم انت الاول، اے اللہ تو ہی اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وانت الاخر، اور تو آخری ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تجھ کے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن، اور تو باطن ہے، فلیس دونک شیء، تجھ سے نیچے نیچے کچھ نہیں ہے، اقضی عنی الدین، مجھ سے قرض چکا دے، واغننی من الفقر، اور مجھے فقیری سے نجات دلا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بہت قریب ہے، تو صحابہ کرام نے اپنی آوازیں بلند کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، ایھا الناس لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، فانکم لا تدعون صم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، انما تدعون، جس کو تم پکارے ہو، سمیعا، سب کچھ ہی سننے والا، قریبا، بہت قریب ہے، ان الذی تدعونہ، جس کو تم پکارے ہو، اقرب الی احدکم، وہ تم میں سے کسی ایک کے زیادہ قریب ہے، من عنق راحلتہ، اس کی سواری کی گردن سے بھی۔ وہ صحابہ کرام سواریوں پہ سوار تھے نا، چڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور بلند آواز سے کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، جس کو پکار رہے ہو وہ تمہاری یہ جو سواری کی گردن ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ اونچی بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مومنین کا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، اس کا یہاں سے اس بات ہے، آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم، بلا شبہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے، کل بھی ہم نے پڑھا، جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو لیلۃ البدر، 14ویں کی رات کو، لا تضامون فی رؤیتی، اور اس پر میں نے دونوں بتائے تھے، رش بھی نہیں ہوگا اور تنگی بھی نہیں ہوگی، اگر تم چاہو اللہ تغلب علی صلاۃ، مغلوب نہ کر دیے جاؤ نماز پر جو طلوع شمس سے پہلے ہے اور اس کے غروب سے پہلے ہے، ففعلوا، تو تم ایسا کرو، فجر اور عصر کی جو نماز ہے مغرب کی، ان پر ہمیشگی کرنی چاہیے، اس پر ہمیشگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ انسان کو نصیب ہوگا۔ تو یہ ساری وہ احادیث تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفات بیان کی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔